So, good morning, dear students. Today we are going to have a really interactive workshop with Rohit Karanjakar. Thank you so much, Rohit, for joining us. I would like to introduce him. As supervisor with a history of working in motion pictures and film industry, skilled in nuke, sellout, and rotoscoping, strong operations professional with a bachelor's in mass media, focused in advertising from Mumbai University, currently working with AnyBrain Pune, taking care of roto department in terms of quality control and client management, working closely with production team in preparing effective and efficient schedules to meet client necessities. Thank you so much, Rohit, for joining, and we can start the workshop. Yeah. So good morning, guys. And this is the first time I'm doing a workshop like this, and I have done it in person, but doing it on virtual way is something new for me as well. So yeah, let's start. I would be taking you through the process, the importance of roto, the process of roto, what are the uses of roto in VFX, and what are the alternatives and what is the future of VFX, roto in VFX. Yeah, so we'll do all of that, and at the end, I think is there a scope of having a question and answer session, Rahul, or to have a question and answers after this? Okay, yeah, because the thing is, like, I cannot see any one of them because I think they all are live on YouTube and we are on Zoom here. Yeah, I'll share the questions with you. I'm going to ask the questions. Yeah. Okay, cool. So let's start. Can you just give me a brief hint about the students who are attending right now? So is anyone of them familiar with this process of this process called rotoscopy? Is anyone familiar with that? Yes, sir. So these students are familiar. We have a second year students who are familiar with rotoscopy and everything. So they have some 50%, I could guess, knows all the rotoscopy. Not 50, almost everyone knows what is rotoscopy and everything. Okay, yeah. Because that if we expect that there are second year students and first year students, so we expect them to at least know the process of roto, what roto is basically in VFX. Yes, sir. Cool. So I'll start from the early stage of roto. So roto was invented by Fisher brothers in 1915. I mean, it is not that important to know who invented it or something, but yes, as we are talking about roto, so let's go through the invention and everything as well. So Fisher brothers invented it in 1915. They did not patented this process since it was used by rest of the people as well. So in the early stage, roto was basically tracing of the character or tracing of the objects over a live action movie. So suppose अगर हमने एक live action movie shoot किया है, उसके ऊपर हम ट्रेसिंग पेपर रख के उसके हिसाब से मैनुअली ड्रॉ करते थे. हर एक फ्रेम बाय फ्रेम उसे ड्रॉ करना पड़ता था. And this drawing was used as a reference for creating an animation version of that particular movie. So tracing is basically रोटोस्कोपी को हम ट्रेसिंग से लिंक कर सकते हैं. तो पुराने जमाने में इट यूज्ड टू बी डन विद अ मैनुअल एफर्ट ऑफ हैंड, हाथ से हम ड्रॉ करते थे उसको हर एक ट्रेसिंग पेपर पे. एंड दिस इज हाउ इट स्टार्टेड. दिस इज हाउ रोटो का इवैल्यूएशन स्टार्ट हुआ. सो आज के जमाने में अगर हम देखने जाएंगे तो मोशन कैप्चर, आप इस टर्म से काफी फेमिलियर होंगे. सो जैसे मोशन कैप्चर अभी यूज हो रहा है, जिसकी वजह से वी गेट अ पर्टिकुलर मोशन, मतलब एक एक्टर को बहुत सारी वायर्स लगी होती है और वो मोशन करता है, अकॉर्डिंगली सीजी कैरेक्टर को भी उसका ही मोशन मिलता है. सो इट वाज सेम लाइक दैट पहले के जमाने में. Later on, it started digitalization of roto and softwares got involved into it. और अभी के टाइम पे भी roto यूज होता है and it has been used since a longer time. But अभी फर्क सिर्फ इतना है कि पहले हम hand painted, hand drawn था वो, but अभी हम हाथ से ही ड्रॉ करते हैं, but it is via a machine or a tool or a software. So yes, just to take you, आज के जमाने में रोटो का मतलब होता है that
tracing a character or tracing any object from a footage and putting him into a different background or into a different scenario altogether. ठीक है? This process is helpful for the filmmakers and the directors a lot, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके वो लोग शूट नहीं कर सकते, या फिर एक पर्टिकुलर जगह पे जाके महंगा होता है बहुत बार शूट करना, या फिर रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है कि नहीं यहाँ पर शूट नहीं कर सकते, या फिर दिस इट इज नॉट अलाउड हियर ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजंस. सो ऐसे सारे केसेस में रोटो इज द वन व्हिच इज क्वाइट यूज्ड अ लॉट. सो आपको रोटो का एक बेसिक आइडिया तो पता चल गया होगा कि व्हाट एग्जैक्टली रोटो इज. सो रोटो इज बेसिकली कटिंग आउट अ कैरेक्टर फ्रॉम अ पर्टिकुलर image or a footage and placing it into some different background. When I say cutting or tracing a character, so जैसे हम फोटोशॉप में करते हैं, हम एक क्रॉप कर लेते हैं कैरेक्टर को, एक कैरेक्टर को ट्रेस कर लेते हैं और फिर उसके पीछे हम कोई भी बैकग्राउंड डाल देते हैं. इट इज द सेम प्रोसेस, बस हम रोटो में उसको बहुत सारे फ्रेम्स के लिए करते हैं. जैसे कि फोटोशॉप में सिर्फ एक इमेज के लिए होता है, वैसे ही रोटो इज डन फॉर सेवरल फ्रेम्स. So for an entire footage, so it can be a 1 minute footage or a 2 minute footage or a 10-second footage. So it is that. Now moving on to efforts which are put into this. बहुत manual efforts लगते हैं, बहुत ही patience लगता है इस चीज के लिए. A person has to be very much patient if he is into roto, क्योंकि बहुत सारे manual efforts डालने पड़ते हैं. And people say कि थोड़ा laborious work है, बहुत ही time consuming है. But guys, if we say उसके बाद जो आउटपुट मिलता है हम, which is really very unrealistic होता है वो काफी, and दिखने मतलब unrealistic इसलिए है क्योंकि वो हमने बनाया है, क्रिएट किया है, तो वो दिखने में काफी realistic होता है. So that's why whenever we say roto, बहुत सारे manual efforts उसमें पड़ते हैं, इसलिए बहुत सारे students वगैरह जो होते हैं, जब उनको सिखाया जाता है कि roto क्या है, so they get a bit adamant कि अरे नहीं, दिस इज अ लॉट टाइम, आई मीन दिस इज वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग, और लोग बहुत अधिकतर लोग इससे भागने की कोशिश करते हैं. आई विल कम टू दैट आल्सो, हाउ इनकरेक्ट दैट थिंग इज. सो विल गेट बैक टू दैट एज आई मीन जैसे हम आगे सेशन में बढ़ेंगे हम उसकी तरफ उसको भी एड्रेस करेंगे कि ऐसा क्यों नहीं होना. सो कमिंग टू द सॉफ्टवेयर्स व्हिच आर अच्छा, बाय द वे सो फार आर वी गोइंग गुड, लाइक सबको सुनाई दे रहा होगा, राइट? अराउंड आई मीन एवरीवन इज एबल. Yes, sir, we are going good. Yes, so I just wanted to check if my background is not too noisy. Okay. Sir, you're sharing a screen or something? I'm not sharing a screen. I've Okay. just written down some points, so it is Sure. just that. Sure, Nothing no else. problem. So that is just for my reference. Sure, sure, sir. Nothing else. Cool. Yeah. After that, let's jump onto the softwares which are used. So आप लोगों को पता होगा बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं. So initially रोटो इंट्रोड्यूस हुआ था आफ्टर इफेक्ट्स में. आफ्टर इफेक्ट्स में देयर यूज्ड टू बी अ प्लगइन, और उस प्लगइन को इंपोर्ट करके फिर रोटो उसमें से स्पाइन्स वगैरह बहुत सारे आते थे. सो आफ्टर इफेक्ट्स वाज वन थिंग, वन सॉफ्टवेयर. फ्यूजन आया उसके बाद. फ्यूजन के बाद वी आल्सो गॉट स्मोक हो गया, नहीं स्मोक पर रोटो नहीं, सॉरी. देयर आर सम मोर सॉफ्टवेयर्स. देन न्यूक आया. सो लेटेस्ट वी गॉट सिल्वेट. सिल्वेट इसलिए बिकॉज सिल्वेट में बहुत सारे स्टूडियोज में आई थिंक ओवरऑल इन द एंटायर इंडस्ट्री सिल्वेट इज बीइंग यूज्ड फॉर रोटोस्कोपी राइट नाउ. बहुत सारे फ्रीलांस आर्टिस्ट वगैरह होते हैं जो ड्यूक प्रेफर करते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स प्रेफर करते हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन एवरीवन्स चॉइस कि कौन से सॉफ्टवेयर में करना है. बट इफ यू आस्क मी, इंडस्ट्री में राइट नाउ न्यूक और सिल्वेट बहुत यूज हो रहा है फॉर रोटोस्कोपिंग. इसका कारण ये भी है कि सिल्वेट हैज मेड इट वेरी इजी, बहुत ही हल्का एंड लाइट वेटेड कर दिया है रोटो करने के लिए. रोटो के टूल्स बहुत ही लाइट वेटेड है, जिसके वजह से हमारे काम को काफी अच्छी स्पीड मिलती है उसमें. रोटो इतना इवॉल्व हुआ है कि पहले वी यूज्ड टू यूज बेजियर्स जिसके दो हैंडल्स होते थे, टैंजेंट्स होते थे जिसके दो. नाउ वी हैव स्टार्टेड यूजिंग बी स्प्लाइन, जिसकी वजह से और ज्यादा हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है रोटो करने में. सो व्हाई ऑल दीज इवोल्यूशंस? बिकॉज द मेन प्रोसेस ऑफ रोटो इज टू गेट अ स्मूदर एज ऑफ अ कैरेक्टर. बहुत बार ऐसा होता है कि लोग रोटो समझ के कर तो देते हैं कैरेक्टर का रोटो या फिर किसी ऑब्जेक्ट का रोटो, फिर वो मूव होता है अब फुटेज के अंदर अपने एनिमेशन के हिसाब से, एंड देन हमारा शेप भी उसके हिसाब से मूव होना चाहिए. एंड दैट्स द रीजन
ये सारी टेक्निकलिटीज है कि बेस ईयर के बाद हम बी स्प्लाइन यूज करने लगे, मतलब ऑल दीज इन्वेंशंस वर मेड टू लुक द स्प्लाइंस एंड द एजेस मोर स्मूथ। जितना स्मूथ आपका एनिमेशन होगा, जितना स्मूथ आपका स्प्लाइंस होगा, उतना ही स्मूथ एंड क्रिस्प एंड क्लियर आपका कैरेक्टर दिखेगा। सो ये सारे इन्वेंशंस होते गए, लाइक स्प्लाइंस में डेवलपमेंट होती गई। ट्रैकिंग जो हम बोलते हैं, ट्रैकिंग जैसे हम रोटो के लिए यूज करते हैं, तो ट्रैकिंग में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आने लग गए। सो ऑल दोस थिंग्स, या सो इट अभी एफर्ट्स, मतलब ओवरऑल जो R&D करते हैं लोग, जो जैसे कि बोरिस इफेक्ट्स हो गया एंड लोग जो टूल्स बनाते हैं, दे ऑल आर फोकसिंग राइट नाउ कि हम इस प्रोसेस को और इजी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में भी बहुत सारे मैनुअल एफर्ट्स इसमें डाले जाते हैं, तो और हम उसको इजी कैसे कर सकते हैं, और everyone is focusing on that right now. Now why it is such? Because अगर मुझे एक कैरेक्टर का रोटो करना है, so for example there is one shot of 100 frames or something, if I need to roto a character, तो उस 100 frames के कैरेक्टर को रोटो करने में मुझे कम से कम 3 से 4 दिन तो लगेंगे। ओके, अब हमारी इंडस्ट्री इतनी फास्ट पेस है ना कि अगर कुछ शूट होके आता है, सो फॉर एग्जांपल इफ इट इज अ कमर्शियल, एक एडवर्टीजमेंट का काम है सब, और एंड उसमें कुछ रोटो इन्वॉल्वमेंट है, तो एडवर्टीजमेंट कैसे होता है कि शूट हो क्या है और अगले दिन उनको एयर करना होता है, अगले दिन उनको, या फिर एक वीक का टाइम होता है, हमें उसको टीवी पे डालना है बहुत ही जल्दी, तो 3 दिन ही अगर रोटो में लगने वाले हैं, तो इट इज गोइंग टू बी अ डिले फॉर देम। इसीलिए एवरीवन इज फोकसिंग ऑन हाउ दीज एफर्ट्स जो हम डालते हैं उसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो राइट नाउ हम आते हैं उसकी तरफ भी, दैट फ्यूचर क्या है रोटो का, हम उसकी तरफ भी आएंगे। सो let's talk about the uses of roto in VFX. So basically इसकी uses मैं बताऊँ आपको तो बहुत सारी चीज़ों की हैं। हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, if we can roto ऑब्जेक्ट और कैरेक्टर एंड हम उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे मल्टीप्लाई मतलब हम डुप्लीकेशन कर सकते हैं उनका। तो बहुत बार ऐसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे शोज ऐसे थे। तो जस्ट टू टेल यू, मूवीज लाइक गोल सीरीज जो मूवी है, जो हॉलीवुड वाली गोल है, फुटबॉल वाली मूवी, उसमें आप देखोगे तो स्टेडियम में बहुत सारी क्राउड बैठी। सो नहीं, ब्रिंगिंग इन ऑल दीज पीपल टुगेदर इज अ वेरी ह्यूज टास्क फॉर डायरेक्टर। सो ऐसे टाइम पे रोटोस्कोप यूज होता है। वी रोटो अ बंच ऑफ क्राउड एंड देन वी कॉपी पेस्ट दैट सेम, और वी कॉपी पेस्ट, हम उनके एनिमेशन थोड़े चेंज करते हैं और उनको कॉपी पेस्ट करते हैं। तो इसी हिसाब से स्टेडियम और पॉपुलेट हो जाता है। सो ऑल दीज जो डुप्लीकेशन के लिए यूज होता है। बहुत बार ऐसे होता है कि आपने देखा होगा कि लेट 2011 से 2015 के बीच में एक एरा आया था जहाँ पर हमारी सारी ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज जो थी वो कलर में हो रही थी। तो वहां पर भी रोटो का बहुत सारा यूज हुआ। सो जैसे कि कलर करेक्शन, सो एक पार्ट का मैंने रोटो किया एंड मुझे ये पार्ट का कलर कुछ और चाहिए, या फिर फेस का रोटो किया, आई वांट ऑल द स्किन टू बी ब्लैक ऑफ अ पर्सन। तो इन सब चीजों के टाइम पे रोटो यूज होता है। सो रोटो इज बेसिकली यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग अ पर्टिकुलर पार्ट एंड चेंज इट्स कलर एज वेल। अगर हम डीप कंपोजिटिंग में जाते हैं, डीप कंपोजिटिंग मतलब एक शॉट है समझो, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स है, फॉग हो गया, स्मोक हो गया, रेन आ रहा है, बर्फ गिर रही है, बहुत कुछ हो रहा है। तो ऐसे टाइम में भी हम रोटो यूज करते हैं। सो जैसे कि एक कैरेक्टर है, उसके पीछे हमें फॉग दिखाना है, तो हम उसका रोटो करेंगे। देन दैट कैरेक्टर इज रनिंग इनटू द कैमरा और उसका हाथ वगैरह आगे है, तो हम उस हाथ का रोटो सेपरेट करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, और छोटी छोटी चीजों में ये यूज होगा, रोटो यूज होगा। सपोज मुझे फायर ऐड करनी है एक शॉट में, तो अगर अगर कैरेक्टर खड़ा है और मैंने उसके आगे एक फायर लगा के रखी, तो उस कैरेक्टर के फेस पे उस फायर का इम्पैक्ट अलग होगा, उस कैरेक्टर के शर्ट पे उस फायर का रिफ्लेक्शन अलग होगा। तो हम मुझे वो रिफ्लेक्शन क्रिएट करने के टाइम पे भी रोटो की जरूरत पड़ेगी। यस, दैट रोटो वोंट बी दैट सॉलिड और दैट प्रिसाइज, या फिर उतना आर्टिकुलेट नहीं होगा वो रोटो, बट यस वहां पर रोटो का यूज होगा ही। सो कमिंग टू माय फर्स्ट पॉइंट अगेन, जैसे कि लाइक स्टार्टिंग से बोल जा रहे हो, जब आप VFX एक चीज बोलते हो, सो उसमें 2D और 3D हो गया। सो जैसे कि जैसे जैसे 3D में सबसे पहला कैमरा मैचिंग, कैमरा ट्रैकिंग वगैरह आता है, वैसे 2D में रोटो ये सबसे पहली चीज आती है। सो आई फील दैट रोटो इज द बेस ऑफ VFX बेसिकली। अगर आपका फाउंडेशन ही क्लियर नहीं होगा, तो आप आगे जब बढ़ोगे तो आपको पता नहीं होगा कि इसकी यूजेस और कहाँ कहाँ होंगे। यस डेफिनेटली, आप अगर
सीधा ऐसा कभी नहीं हुआ है राइट कि आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड स्किप किया और डायरेक्टली आप सिक्स्थ में चले गए, नो, ऐसा कभी नहीं होता. सो इट इज जस्ट द केस कि पहले आपको आपका बेस क्लियर करना पड़ेगा, आपको आपकी फाउंडेशन क्लियर करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो. बिकॉज एकदम छोटी छोटी चीजों में भी रोटो आगे जाके यूज होगा ही. भले आप कितने भी बड़े कंपोजिटर बन जाओ, कितने भी बड़े डायरेक्टर बन जाओ या आर्ट डायरेक्टर बन जाओ, आपको चीजें समझनी चाहिए. सो एक डायरेक्टर के विजन से भी हमें अगर आप देखोगे, सो इफ आई एम अ डायरेक्टर एंड आई वांट टू शूट अ पर्टिकुलर मूवी, एंड जिसके लिए मुझे ऐसा ही लोकेशन, एक ऐसा लोकेशन चाहिए जहाँ जाके ही हमें शूट करना है जिसके वजह से फील आ सकता है, अदरवाइज मेरी मूवी का या फिर उस शॉट का फील नहीं है. सो आई थिंक कि वहां जाना, वहां जाके शूटिंग करना, उसकी कॉस्ट कितनी होगी. सो फॉर एग्जाम्पल मुझे पाकिस्तान जाके शूट करना है, सो विच इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ परमिशंस एंड सिक्योरिटीज इन्वॉल्वड इनटू दिस. सो लोग क्या करते हैं that they'll be shooting it on a set या फिर in front of a green screen, और फिर बाद में we can put that character into a particular location. तो बजटिंग वगैरह भी जब आती है तो वो सारी चीजें वहाँ पर बहुत इन्वॉल्व होती हैं. तो इसीलिए रोटो इज इम्पोर्टेंट एट दैट एस्पेक्ट एज वेल. अगेन टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस, आपने मतलब व्हाई एम आई सो मच फैसिनेटेड अबाउट रोटो इज बिकॉज आपने कंसेप्ट सुनी होगी ओमनी प्रेजेंट. ओमनी प्रेजेंट वाली कंसेप्ट अगर आपने सुनी होगी, दैट मीन्स ओमनी प्रेजेंट इज अ थिंग जहां पर एक बंदा एक टाइम पे अनलिमिटेड जगह पे प्रेजेंट हो सकता है. ओके, एंड डिजिटल वे में रोटो कैन डू दैट, एंड दैट्स व्हाई आई लव रोटो बिकॉज इट इज लाइक अ मैजिक फॉर मी. बिकॉज आप उससे बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकते हो, एंड नॉट ओनली मतलब रोटो करना मतलब एक जगह बैठ के उस कैरेक्टर को रोटो करना नहीं है. उसके बाद जो उसका रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को आप एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, एन नंबर ऑफ वीएफएक्स स्ट्रीम्स में यूज कर सकते हो. बहुत सारी जगह पे उसका यूज हो सकता है. इसीलिए आई वुड व्हेन आई सेड कि आपकी बेस अच्छी होनी चाहिए, आपकी फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको आगे जाके पता होना चाहिए कि इस चीज का कहाँ कहाँ यूज होने वाला है. अगर आपको पता ही नहीं है कि रोटो का कहाँ कहाँ यूज होने वाला है, तो आप एज अ कंपोजिटर उसको यूज ही नहीं कर सकते वहां पर. एज अ कंपोजिटर आपको क्रिएटिविटी लगानी होगी कुछ, और आपको पता ही नहीं होगा कि ये रोटोस्कोपी बोल के भी एक प्रोसेस है. तो आप मतलब आई थिंक यू बी स्टक एट अ पॉइंट. सो फॉर दैट आपका बेस काफी क्लियर होना चाहिए, एंड दैट बेस इज रोटो. रोटो एंड पेंट आई वुड से, बट रोटो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट रोटो, सो रोटो एक काफी अच्छा बेस है एंड काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है वीएफएक्स का. सो अगर आप में से आई एम श्योर लाइक बीइंग अ स्टूडेंट, बहुत सारे लोगों की सोच ये होती है कि नहीं मैं रोटो पेंट स्किप कर सकता हूँ एंड आई कैन डायरेक्टली जंप ऑन टू कंपोजिटिंग. गाइस, अगर आप में से किसी को कंपोजिटर बनना है एंड आपके दिमाग में ये थॉट है कि नहीं, आपको आप रोटो और पेंट स्किप कर दोगे या फिर आप रोटो और पेंट में एक साल बिता दोगे, उसके बाद आप आगे बढ़ जाओगे. सो नो, आई फील टू बी अ वेरी गुड कंपोजिटर यू शुड एटलीस्ट स्पेंड 4 years, yeah, 3 to 4 years in roto, 4 to 5 years in paint, and then move on to compositing. एंड ऐसा नहीं है कि इसके बीच में आपको कुछ कंपोजिटिंग करने मिलेगी. डेफिनेटली इफ यू आर एसोसिएटेड इन फ्यूचर, इफ यू आर एसोसिएटेड विद अ स्टूडियो और समथिंग, तो जब आप रोटो करोगे ना, आप रोटो भी एक कंपोजिटर के लिए ही करोगे. तो जब आप रोटो करोगे तो आपको पता होगा आप ये रोटो किस चीज के लिए कर रहे हो, एंड बाय दैट आपको नॉलेज आ जाएगी कि ओके मैं इसका रोटो इस चीज के लिए कर रहा हूँ, दैट मींस ये कॉम्प पे ऐसे यूज होने, तो आपको कॉम्प की नॉलेज भी साइड बाय साइड मिलती जाएगी. So whenever you are working on your base, whenever you are working on your initial days on roto, तभी आपको कॉम्प के बारे में भी बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी. So the moral here is that do not skip this part and think of directly jumping onto compositing. ऐसा मत करो. That will be not good actually, ethically as well as process wise वो सही नहीं. So I would say पहले अपने फाउंडेशन पे काम करो. आई गेस यहाँ तक हम काफी क्लियर है. एक बहुत ही रोटो रोटो हो गया है, अंडरस्टैंड, बट आई जस्ट वांट टू convey a message that how important it is. Moving on to the next part, that is alternatives of roto. So as I said, अभी के डेट में जो हमारे लोग जो R&D कर रहे हैं बहुत सारे, they are trying to figure out that how the efforts can be lessened, how the efforts can be reduced. अगर एक 3 दिन का रोटो करने को, एक कैरेक्टर को रोटो करने में 3 days लग रहा है, तो हम 3 दिन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. तो आजकल लोग इसके पीछे R&D कर रहे हैं बहुत.
सेम R&D was done few years back and हम लोग एक concept को familiar हुए थे which is called keying. अभी आप keying इस concept को कितने लोग familiar है even I don't know but yes so keying basically is इसमें blue screen और green screen involved होता है, ठीक है. So keying is a very technical word basically. आजकल लोग green screen blue screen बोलते हैं. So सबसे पहले तो why blue and green screen only? So ये दो कलर्स ऐसे हैं जो हमारे स्किन टोन में ज्यादा पाए नहीं जाते, ठीक है. एंड दैट्स द रीजन ग्रीन स्क्रीन और ब्लू स्क्रीन इज बीइंग यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग अ कैरेक्टर फ्रॉम द बैकग्राउंड. ऑल्सो दीज टू कलर्स आर न्यूट्रल और या फिर कोल्ड बोलोगे. अगर आप रेनबो देखोगे, अगर आप विबग्योर देखोगे, कोई अगर विबग्योर के कॉन्सेप्ट से क्लियर होगा वॉयलेट इंडिगो ग्रीन ब्लू, अगर आप उस व्हील कलर व्हील से फेमिलियर होगे तो आप देखोगे तो कलर व्हील के बीच में ब्लू और ग्रीन आता है. विबग्योर की स्पेलिंग में भी बी और जी बीच में आता है. सो इट इज अ कंसेप्ट बेसिकली. So these two colors are neutral, and that's why we use green and blue as the background for extracting a character. यहाँ पर भी बहुत स्पेसिफिकेशन है. ग्रीन स्क्रीन बेसिकली यूज होता है फॉर इंडोर शूट्स एंड ब्लू स्क्रीन यूज होता है फॉर आउटडोर शूट्स में बहुत बार. सो कमिंग बैक टू keying or green screen blue screen. So whenever we shot a character on a green screen, कुछ टेक्निक्स है सिलुएट में और न्यूट में जिसकी वजह से we can easily get a matte. एक हमें उस कैरेक्टर की एज मिल जाती है by putting on some nodes, putting on some techniques into it. हमें वो कैरेक्टर के एजेस मिल जाते हैं. So यहाँ पर ऐसा हो जाता है ना कि अगर मुझे एक कैरेक्टर का रोटो करना है for 100 frames, let's assume, तो मुझे रोटो करने में 3 दिन जाएगा, whereas मुझे की करने में सिर्फ 1 दिन जाएगा. So बट की में भी 1 दिन जाएगा. एंड व्हेन हम उसका जब की करेंगे तो हमें की करने के टाइम भी कैसे रोटो यूज होगा वहां पर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है. सो आप देख रहे हैं हमने अल्टरनेट वे निकाला रोटो रिड्यूस करने की, बट हमें की करने के लिए भी रोटो यूज लगा, रोटो का यूज आया है. जब आप अभी अगर आपका किसी का कीइंग का क्लास वगैरह हुआ होगा तो आपको पता होगा कि कैसे रोटो उसमें यूज होता है. सो व्हेन आई से अ ग्रीन कैरेक्टर इन फ्रंट ऑफ ग्रीन स्क्रीन, आपने बस एक नोट डाल दिया और वो कैरेक्टर का मैट मिल गया, ऐसे नहीं होता. आपको उस कैरेक्टर का छोटा छोटा अलग अलग पार्ट रोटो करना, अलग अलग पार्ट की करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि अगर एक सेट के अंदर कैरेक्टर खड़ा है और एक सेट है, देयर आर मल्टीपल लाइटिंग सोर्सेस इन द सेट. अगर थोड़ी सी भी लाइटिंग डिफरेंस हुई तो कीइंग में हमें प्रॉब्लम होता है. एंड डेफिनेटली वो होता ही है बिकॉज हम इतना यूनिफॉर्मिटी नहीं ला सकते बड़े से सेट में कि लाइटिंग भी प्रॉपर हो और सब कुछ सही हो. क्लोज होता है बट टू गेट अ वेरी गुड रिजल्ट लाइक हॉलीवुड टाइप का आउटपुट चाहिए आपको, तो आपको छोटे छोटे पार्ट की करने पड़ेंगे. एंड मैंने ऐसे छोटे छोटे पार्ट की करने पड़ेंगे तो आपको पहले वो छोटे छोटे पार्ट गार्बेज रोटो करने होंगे, उसके बाद उसका की करना. नाउ व्हेन आई से गार्बेज रोटो इज बेसिकली हमें एज टू एज नहीं जाना होता, हमें बस एक नॉर्मल एक मास्क बनाना होता है. सो दैट इज कॉल्ड गार्बेज रोटो या फिर जी मैट बोलते हैं हम उसको. सो वो करने के बाद हमें अलग अलग पार्ट का की निकालना होता है. सो यू सी हाउ रोटो इज यूज्ड इन दिस ऑल्सो. हमें यहाँ पर भी रोटो का यूज लगेगा. अगर कोई होता जिसको रोटो क्या होता है ये पता ही नहीं था, तो वो बंदा या बंदी हुए इट इज, वो उस कैरेक्टर का की एक साथ निकालने जाता, which is completely a wrong technique. So can you link now that why roto is important at every part, every step of compositing? So this is it. दूसरा एक प्रोसेस था जहाँ पर हमने चीजें मतलब मैनुअल एफर्ट जो लगते हैं रोटो में उसको रिड्यूस करने के लिए, हम दूसरा एक और प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं मैट एक्सट्रैक्शन. Now matte extraction is basically a place or a situation जहाँ पर ग्रीन या ब्लू स्क्रीन अवेलेबल नहीं है. सो ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे? सो न्यूक जो सॉफ्टवेयर है वो ऐसे डेवलप हुआ है कि हमें काफी अच्छी ये मिले. सो फॉर एग्जांपल आप मेरा बैकग्राउंड देख सकते हो. सो इट इज कंप्लीटली वाइट, ठीक है. हाँ, देयर इज वन लाइन बिकॉज देयर आर टू वॉइस जॉइनिंग, सो दैट इज ओके. सो कंप्लीट वाइट बैकग्राउंड है. आई एम वेयरिंग अ डार्क ब्लू कलर ऑफ हुडी, तो कंट्रास्टिंग कलर है, राइट? ये और ये कंट्रास्टिंग कलर. सो ड्यूक इज डिजाइन्ड इन सच वे दैट जो मैं कीइंग के लिए टेक्निक यूज कर रहा हूँ वही मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ. सो देयर इज अ नोड कॉल्ड ग्रेड इन कीइंग इन ड्यूक बेसिकली. तो जहाँ पर भी मुझे कंट्रास्ट मिलता है मैं वहां पर थोड़े कलर करेक्शंस करके मेरा मैट मतलब एक कैरेक्टर का अलग से मैट निकाल सकते हैं. बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द बैकग्राउंड
and the character in foreground should be having some contrast in both of them. दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, तो ही वो निकल सकता है. बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे इंडियन डायरेक्टर्स, जो हॉलीवुड डायरेक्टर्स का भी होता है बहुत बार, वो लोग क्या करते हैं कि दे प्लेस अ ग्रीन स्क्रीन और उस ग्रीन स्क्रीन के सामने एक कैरेक्टर रखते हैं ताकि उनके रोटर एफर्ट्स कम हो जाए. बट देन वो कैरेक्टर को भी ग्रीन कपड़े पहना देते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि कैरेक्टर के कुछ कॉस्ट्यूम में ग्रीन होता है. तो जैसे कि आई जस्ट शेयर वन ऑफ माय एग्जांपल. We were working on one of the Bollywood movie. I cannot reveal the name. So उस Bollywood movie में ऐसा होता है कि ग्रीन स्क्रीन लगाई है डायरेक्टर ने पूरी, and this actress is running in front of the screen. उसको वो स्क्रीन से भाग के जाना है, and the shot was quite long, and the lady was wearing a blue jeans. अब ब्लू स्क्रीन के ऊपर जब ब्लू कैरेक्टर एक ब्लू स्क्रीन के ऊपर एक कैरेक्टर अगर ब्लू कपड़े पहन के आता है तो वो की करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. सो अगेन उसको उसको सॉल्व करने के लिए रोटो एक साथ सुपरमैन बन के रोटो आ गया बीच में, एंड चलो मैं तुमको हेल्प कर दूंगा, एंड देन वी हैड टू रोटो द एंटायर पार्ट जहां जहां उसने ब्लू पहना था. तो ब्लू वाला जो एरिया उन्होंने जो ब्लू कपड़े पहने थे वो हमें रोटो करने पड़े, और बाकी का एरिया ठीक है. बट यस, ऐसी कुछ डायरेक्टोरियल गलतियों की वजह से भी हमें रोटो का इस्तेमाल करना पड़ता है बहुत. सो it is supposed to be used at every step, every point of VFX. I think यहाँ तक काफी क्लियर होगा. राहुल, I just need a confirmation. Is it going well? Good. Yeah. Right. Okay. I might have missed that. Okay. So there are two types of rotos. हम VFX roto बोलते हैं और हम stereo roto बोलते हैं. So VFX roto is basically used to build in a shot. मतलब एक शॉट के अंदर हमें अगर स्मोक डालना है, फॉग डालना है, या फिर उसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो उसे हम VFX roto बोलेंगे. एंड VFX roto की टेक्निक अलग होती है. VFX roto में हम मोशन ब्लर कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, एज टू एज रखने की एकदम कोशिश करते हैं. हमें मैट में से सॉफ्ट एज और हार्ड एज एकदम बराबर मिलनी चाहिए. दैट इज VFX roto. Stereo roto is basically we roto the character to its last pixel. एकदम जो लास्ट पिक्सल होता है उसका, हम उस पे हमारी एजेस रख के उसको रोटो करते हैं. हाँ, यहाँ पे सिमिलैरिटी ये है कि हमें दोनों में भी एकदम प्रॉपर 100% क्वालिटी देनी होती है. ऐसा नहीं है कि VFX रोटो में कम क्वालिटी लगती है, स्टीरियो रोटो में ज्यादा क्वालिटी का कम क्वालिटी लगती है, ऐसा नहीं. तो स्टीरियो रोटो में हमें एकदम लास्ट पिक्सल पकड़ना पड़ता है, एंड वी हैव टू मेक इट वेरी आर्टिकुलेट. VFX रोटो में ऐसा था कि हम एक कैरेक्टर का रोटो कर देंगे और उसके पीछे हम कुछ भी एलिमेंट डाल देंगे, इट इज डन. बट स्टीरियो रोटो में ऐसा नहीं होता. स्टीरियो रोटो इज लाइक इफ आई एम अ कैरेक्टर सिटिंग इन अ क्लोजअप, तो मेरा पूरा एक एज रोटो होगा, उसके बाद में मेरे आंख रोटो होगी, मेरा नोज रोटो होगा, मेरे लिप्स रोटो होंगे. अगर मेरा हैंड आगे आ रहा है, फॉर एग्जांपल ऐसी पोजीशन है मेरी, तो मेरा हैंड अलग से रोटो होगा. एंड आगे उसके बाद हैंड का जो रोटो होगा दैट विल बी इन फोरग्राउंड, मेरा रोटो जो होगा दैट विल बी इन द बैकग्राउंड. एंड इन सब अलग अलग हमने इन सब चीजों का अलग अलग रोटो क्यों किया? क्योंकि स्टीरियो रोटो हम यूज करते हैं एक शॉट को डेप्थ देने की. So basically, when we receive a footage, it is a flat. It is a 2D flat screen. Stereo roto यूज होता है ताकि हम इन सब एलिमेंट्स का रोटो अलग अलग करें और उनको हम अलग अलग चीजों में प्लेस करें. सो मेरा हैंड पहले प्लेस होगा, उसके बाद में मेरा नोज थोड़ा पहले प्लेस होगा, फिर मेरी आंखें प्लेस होगी, एंड अकॉर्डिंगली हम एक 2D इमेज को 3D कन्वर्ट करें. सो कन्वर्टिंग अ 2D इनटू 3D, उसके लिए भी रोटो का बहुत यूज होता है, और उस रोटो को हम स्टीरियो रोटो बोलते हैं. Is it clear, or do you want me to explain it more? Hello? Yeah, so is it sufficient, or you want me to explain it more? No, Like, that's good enough, sir. Thank you so okay. much. Yeah. So it was a good question. Actually, it got missed from my side. So roto is also used for creating a 2D image into 3D. So it is not only used in 2D, but it is also used while converting a 2D short movie into 3D. So let's come to the future of roto. Okay. Now बहुत ही I would say लोगों के मिक्स्ड व्यूज है इस चीज में. व्हेन आई से मिक्स्ड व्यूज, मतलब लोगों को लगता है कि बंद हो जाएगा रोटो, या फिर
रोटो का प्रोसेस जो है वो ऑटोमेट हो जाएगा। बंद तो नहीं होगा, बंद तो कभी नहीं होगा, ऑटोमेट भी कुछ हद तक होगा। लोग काफी मतलब 2-3 साल पहले लोग ये बोल रहे थे कि अभी तो स्टीरियो कैमरा आ गया है, मतलब लेफ्ट एंड राइट कैमरा साथ में आ गया है, तो स्टीरियो रोटो का जो बिजनेस है, स्टीरियो रोटो के जो स्टूडियोज है उनके पास कहाँ से काम आएगा। बट नो, जब लेफ्ट एंड राइट कैमरा इंट्रोड्यूस हुआ था, तो आप ये भी देखो कि लेफ्ट एंड राइट कैमरा चुनिंदा डायरेक्टर्स के पास है, प्लस इट इज वेरी कॉस्टली। कॉस्टली के अलावा भी जब लेफ्ट एंड राइट कैमरा से आप शूट करते हो तो उसमें वीएफएक्स तो होना ही है। तो जब वीएफएक्स रोटो में वो लेफ्ट एंड राइट कैमरा जब आता है तो हमें 2 फुटेज आती है। तो आप ये देख रहे हो, अगर एक शो में 300 शॉट्स है तो हमें उन 300 शॉट्स को इंटू 2 करना पड़ता है, क्योंकि हर एक शॉट की 2 प्लेट आती है हमारे पास। तो हमें लेफ्ट आई पे रोटो करना पड़ता है, राइट आई पे रोटो करना पड़ता है, हमें दोनों आईज पे रोटो करना पड़ता है। एंड आप देख रहे हो, जब आपको रोटो, पेंट, मैक्स मूव, कॉम, ये सारी चीजें अगर आपको 2-2 प्लेट्स पे करनी पड़ेगी तो उस मूवी का बजट कितना बढ़ जाएगा। इसीलिए जो डायरेक्टर्स वगैरह है वो ये सोचते हैं कि हम सिंगल कैमरा से शूट कर लेंगे और फिर बाद में हम इसको स्टीरियो कन्वर्ट कर लेंगे। तो एट द एंड आप देखोगे तो बजटिंग का जब इशू आता है, तो बजटिंग का जब सवाल आता है, तो स्टीरियो करना या और स्टीरियो शूट करना, शायद इसमें कुछ बजट का डिफरेंस होगा, इसलिए स्टीरियो मूवीज आज भी निकल रही है। तो ऐसा नहीं है कि स्टीरियो रोटो बंद हो गया है, नो, स्टीरियो रोटो स्टिल ऑन बिकॉज ऑफ द बजटिंग फैक्टर। कमिंग टू द एआई पार्ट ऑफ दिस, व्हेन आई से एआई, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो रोटो का बहुत आर&डी चल रहा है कि हम इसको ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारे टूल्स आए हैं, आई वोंट टेक नेम्स, बहुत सारे टूल आए हैं अभी मार्केट में जो यूज होते हैं एज एआई इन रोटो। बट अगर आप देखोगे ना, तो उन सब का आउटपुट जो है, आई थिंक लोग बोल रहे हैं कि अभी भी वो डेवलप हो रहा है, अभी भी वो डेवलप हो रहा है। मैं जब से सुन रहा हूँ, इट हैज बीन लाइक 3 years नाउ, 3 to 4 years नाउ, कि हाँ अभी भी डेवलप हो रहा है, अभी डेवलप हो रहा है। ठीक है, इस चीज को डेवलप होने में बहुत टाइम लगेगा, इसका आउटपुट भी अराउंड ऑलमोस्ट 50% तक आ गया है। बट कैसा होता है ना कि कितनी भी चीज आप ऑटोमेट कर लो, उसमें आपको मैनुअल एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे। क्योंकि देखो, जैसे हमने बोला कि रोटो इज यूज्ड फॉर चेंजिंग द बैकग्राउंड। जब आप बैकग्राउंड चेंज करते हो ना किसी चीज का, किसी पीछे, तो उस कैरेक्टर का रोटो इतना क्रिस्प और इतना प्रिसाइज होना चाहिए कि उसमें थोड़ा सा भी जिटर या बॉबल दिखना नहीं चाहिए। Whereas when you introduce AI on such platforms, अगर आप AI का यूज करते हो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, तो इट इज वेरी फ्रीजी, या फिर बहुत ही जर्की या जिटरी दिखने लगता है हमें आउटपुट। एक सिंपल एग्जांपल बताऊं आपको, इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हो आप सब लोग, राइट? तो इंस्टाग्राम में वो फिल्टर्स होते हैं, आपने देखा है, जिसमें बैकग्राउंड चेंज होता है अपने आप। सो दैट इज समथिंग लाइक एआई। तो उसका आउटपुट कितना इफेक्टिव होता है उसका आउटपुट, राइट? तो इट इज द सेम थिंग, इट इज द सेम थिंग। अगर आप मुझे बताओ, अगर ऐसा आउटपुट आपको थिएटर्स में देखने मिला तो पूरा मजा ही किरकिरा हो जाएगा। सो यस, इवन इफ वी हैव एआई इन प्लेस ना, हमें कुछ ना कुछ मैनुअल एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे उस चीज को 100% क्वालिटी तक लाने के लिए। So I don't think that AI is going to affect so much, but you never know. Like in 10 years, क्या टेक्नोलॉजी आ जाएगी। बट मुझे ये भी लगता है कि वो AI चलाने के लिए भी ह्यूमन एफर्ट्स ही लगेंगे। तो ऐसा नहीं है कि दुकान बंद हो जाएगी या समथिंग, इट इज गोइंग टू रन। एंड वो तो कभी बंद नहीं होगा, बिकॉज इट हैज वास्ट एंड ह्यूज क्या बोलते हैं, मैनुअल एफर्ट्स उसमें लगते हैं। तो वो मुझे नहीं लगता, और मैनुअल एफर्ट्स से जो रिजल्ट आता है वो आई डोंट थिंक सो कि अगले 10 साल में भी AI में आएगा। सो दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट मुझे लगता है कि ये दुकान अब भी चलनी चाहिए और आगे बढ़। कमिंग टू द मैनुअल एफर्ट्स वाला पार्ट, रोटो इन इटसेल्फ हैज डेवलप्ड सो मेनी टेक्निक्स, जैसे कि सिल्वेट ने हमें, सिल्वेट जो सॉफ्टवेयर है, पहले बहुत डिफिकल्टीज होती थी मोशन पर कैप्चर करने में वगैरह। इफ यू आर वर्किंग ऑन अ वीएफएक्स रोटो, तो हमें मोशन पर कैप्चर वगैरह करने में बहुत दिक्कत होती है। बट जो लेटेस्ट वर्जन ऑफ सिल्वेट है, उसमें हमें व्हेन वी आर रोटिंग ऑन अ मोशन पर पार्ट, सो हार्ड एज अलग और सॉफ्ट एज अलग होती है, और हमें वो काफी अच्छी तरीके से मैच करना पड़ता है टू गेट अ वेरी गुड आउटपुट। सो सिल्वेट हैज कम अप विद वन टूल कॉल्ड ओनियन स्किन। तो वो इतना इफेक्टिव है कि वो हमें मतलब वो सॉफ्टवेयर इन इटसेल्फ
कुछ चीजें कैलकुलेट करता है, उसके पीछे कुछ प्रोग्राम चलता है, एंड वो हमें बता देता है कि ये यहाँ सॉफ्टवेयर है और यहाँ हार्डवेयर है। तो सॉफ्टवेयर के बदौलत हमें वो भी एक चीज काफी अच्छे से मिल जाती है। So these are all the things which are being worked upon by the people who are doing R&D, कि हमारे efforts कैसे कम होते हैं। फिर ट्रैकिंग बोल के एक एस्पेक्ट है जो काफी यूज होता है रोटो में। ट्रैकिंग से ऐसा होता है कि हम एक ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर लेते हैं और फिर हम उस ऑब्जेक्ट को ही हमें उस ऑब्जेक्ट का ही रोटो करना होता है। तो हमें मैन्युअली फ्रेम बाय फ्रेम जाके रोटो ना करने से अच्छा हमने जो ट्रैक की वैल्यू होती है वो हम हमारे रोटो पे कॉपी पेस्ट करते हैं। तो ट्रैक वो हमारा रोटो जो है वो ट्रैक के साथ चले जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे मैनुअल एफर्ट जो है वो बच जाते हैं काफी। या सो दिस इज हाउ आई फील कि ऑल इन ऑल मतलब मोटा मोटा जो मुझे रोटो का नॉलेज है वो है, आई मीन दिस इज इट। एंड राइट नाउ ऑन अ पर्सनल ग्राउंड आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन थिंग्स जहाँ पर मैं लोगों को और ट्रेन कर सकूँ, लोगों को और बता सकूँ कि क्या क्या कितनी चीजें हो सकती है रोटो में। And from my part of VFX, so my journey has been like I was working as a junior roto artist पहले, and then मैं जिस स्टूडियो में junior roto artist था उसी स्टूडियो में मैं head बना। Now I have shifted to my job. I'm into a different studio जहाँ पर मुझे training and development का भी part है। So I'm focusing more on how I can develop and train people more into roto, because I feel it is also one of the important point in VFX. Now why आई फील कि रोटो एंड पेंट और ये सारी चीजों को ज्यादा वर्चस्व मिलना चाहिए इज बिकॉज कहीं ना कहीं पे ना एक माइंडसेट हो गया लोगों की नहीं, कंपोजिटिंग इज द ओनली थिंग, कंपोजिटिंग ही वीएफएक्स है सब कुछ। ऐसा नहीं है। अगर आप देखोगे ना तो इंडियन इंडियन वीएफएक्स फ्यूचर आप देखने जाओगे तो हाँ यस हमारे बॉलीवुड वीएफएक्स, हमारा जो टॉलीवुड वीएफएक्स है वो भी काफी इवॉल्व हो रहा है। हमने अभी RRR बोल की मूवी आ रही है, फिर बाहुबली हमने देखी थी, उसमें काफी अच्छा वीएफएक्स था। आपने जीरो मूवी देखी होगी जिसका शाहरुख खान वाली, जिसमें चीज में काम आ रही है, जिसमें शाहरुख खान को हमने छोटा बनाया है। तो हम भी काफी अच्छी तरीके से इवॉल्व हो रहे हैं, बट द प्रोसेस इज बीइंग अ बिट स्लो एंड दैट इज बिकॉज ऑफ टैलेंट की वजह से भी हो सकता है, या फिर जो मशीनरीज हमारे पास है वो भी उसकी वजह से भी हो सकता है। बट एक गलत कंसेप्शन क्रिएट हुई है हॉलीवुड स्टूडियोज में कि अगर इंडियन म्यूजिक मार्केट की बात करो तो उन्हें लगता है कि ज्यादा करके रोटो पेंट और मैच मूव यहाँ पे होना चाहिए, और जो बड़े बड़े 3D के और हैवी कंपोजिटिंग शॉट्स हैं वो बाहर होने चाहिए। बिकॉज वहाँ के जो मतलब वहाँ का जो पे स्केल और वहाँ का जो टैक्सेशन वगैरह सब होता है, अगर एक रोटो आर्टिस्ट है वहाँ तो वो बहुत महंगा हो जाता है उन स्टूडियोज के लिए। उस आर्टिस्ट से वो रोटो कराना बहुत महंगा पड़ जाता है, क्योंकि उसकी रेम्यूनरेशन वैसी होती है, उसकी सैलरीज वैसी होती है। इसीलिए इसीलिए आप देखोगे लेटली फ्रॉम लाइक पास्ट 5-6 years रोटो पेंट मैक्सवेल का काम जो बाहर चलता था वो इंडिया में इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, like बहुत आ रहा है। एंड दिस इज व्हाई आई फील दैट देयर इज अ नीड that people should be more educated into roto and paint and match move and compositing as well, क्योंकि इंडिया में भी कुछ पार्ट होता है कॉम का, बट heaviest part of VFX which is done in India is roto paint and match move। तो अगर आप इमर्जिंग स्टूडेंट्स होंगे तो आई वुड से कि आपकी जो स्किल सेट्स है इन दो चीजों में, रोटो एंड पेंट फॉर 2D एंड मैच मूव एंड कैमरा ट्रैकिंग 3D, इसमें ज्यादा फोकस करो। यस कॉम्पिंग है ही, बट इन चीजों में भी ज्यादा फोकस करो। कमिंग टू अ कॉम पार्ट छोटा सा, जैसे कि अभी देख रहे हो आप वर्क फ्रॉम होम चल रहा है बहुत सारा, और बाहर के स्टूडियोज इंडियन आर्टिस्ट को रिमोट वर्क बहुत सारा दे रहे हैं। सो आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु आर वर्किंग फॉर ILM एंड NPC जो बाहर है अभी, तो उनको भी इंडिया से काम मिल रहा है बहुत, बिकॉज इवन दे हैव अंडरस्टूड कि नहीं यहाँ पर भी अच्छा टैलेंट है, और मतलब कंसिडरिंग द मनी वैल्यू यहाँ पर थोड़ा सस्ते में उनको मिलता है रिसोर्सेज, तो वो लोग इंडिया में भी बहुत पीयर्स हो रहे हैं अभी काम देने के हिसाब से। तो यस द फ्यूचर इज क्वाइट गुड फॉर रोटो पेंट मैचेस एंड कॉम। आई वुड विश एवरीवन अ वेरी गुड लक, एंड जल्दी से अपना जो भी पढ़ाई वढ़ाई है कंप्लीट करो। ऑल्सो आपके सराउंडिंग्स में जो लोग होंगे इंस्पायर देम, उनको पर्सुएट करो कि कैसे हमारी इंडस्ट्री बूम हो रही है अभी। और आई मीन government is also working upon
स्किल्ड लेबर में तो हम आ गए हैं. गवर्नमेंट इज ऑल्सो वर्किंग अपॉन कि हाउ हमारी इंडस्ट्री को थोड़ा और वर्चस्व मिले. तो यस, अगर गवर्नमेंट खुद हाथ मारी तो हमें भी हमारे एंड से करना चाहिए. तो आपके सराउंडिंग में भी जो लोग होंगे जो आजकल मतलब इंजीनियरिंग ही करते हैं बहुत सारे लोग, या फिर IIT ही सबका सपना होता है. तो नो, दिस इज ऑल्सो अ फील्ड जहाँ पर आप अपना करियर बना सकते हो. सो यू कैन परsuade योर पीपल टुवर्ड्स दिस साइड ऑल्सो. Yes, that's it from my side. I think we should open the session for questions now. So, So, sir, one question I have from my end is a lot of students, once I get into a roto industry as a roto artist, how is the growth inside and what sort of skill sets do I need to be a roto okay. artist? Okay. So, first of all, when you pass out from your institute or your college, आपको you'll have to serve as a junior roto artist, या फिर एक intern की तरह आपको काम करना पड़ता है बहुत बार. When we say internship, people are like अरे कम सैलरी होगी, या फिर हाँ हम तो ऐसे बोलेंगे कि बहुत सीखने मिल रहा है फिर कम सैलरी. नो, बट एज एन इंटर्न आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा. स्लोली आपकी ग्रोथ ऐसी होगी कि इट विल बी कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन योर वर्क, योर ऑब्जर्वेशंस. क्योंकि आप जब एक स्टूडियो में काम करोगे तो आपके साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग भी होंगे. सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द आर्टिस्ट कि वो कितना एब्सॉर्ब कर रहा है अपनी सराउंडिंग से. क्योंकि वर्किंग इन अ प्रोडक्शन एंड जो हम इंस्टीट्यूट में सीखते हैं उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है. जब हम प्रोडक्शन में आ जाते हैं तो हमें बहुत सारी नई टेक्निक्स और तो क्या बोलते चीट कोड्स वगैरह बहुत सारे मिल जाते हैं कि ओके इसका रूट ऐसे भी. तो एक इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना सीखना चाहता है और उसका एटीट्यूड कितना लर्निंग है, एज वेल एज उसकी ग्रास्पिंग पावर्स कितनी अच्छी है. And if you are really working, if you are really looking towards a growth in yourself, आप बहुत ही passionate हो इस चीज को लेके, and you do not have any negative thoughts कि अरे रोटो ही करना है क्या मुझे, और अगर ये सारे थॉट्स अगर आप हटा दो और आप काफी पैशनेटली काम करोगे तो काफी अच्छी ग्रोथ है. आप अगर मतलब एज अ स्किल ऑल्सो इट इज वेरी यूजफुल, एंड मॉनिटरी साइड पे देखोगे तो भी अच्छा है. एंड आजकल रोटो आर्टिस्ट का मॉनिटरी ग्रोथ भी काफी अच्छा दिखने में आ रहा है. लाइक कंपनीज हैव इंक्रीज्ड देयर सैलरी बैंडविड्थ. जैसे मतलब पहले ऐसा होता था कि सिर्फ कॉम को ज्यादा सैलरी होती थी या फिर पेंट को ज्यादा सैलरी होती थी. ऐसे नहीं हुआ. अभी रोटो आर्टिस्ट को भी उतना ही ये मिल रहा है, औदा मिल रहा है, उतनी ही रिस्पेक्ट मिल रही है. So yes, about the growth, I said it is completely depend upon a person's mind, his attitude, his passion towards it. ग्रोथ तो काफी अच्छी है. ग्रोथ तो काफी अच्छी है. आई वुड से कि 4 से 5 साल बिताओ रोटो में, सीनियर आर्टिस्ट बनो. After that, it is on you. If you want to grow vertically, you grow vertically. When I say vertical growth, that means you can go on to TL, supervisor roles. या फिर अगर आप हॉरिजॉन्टली ग्रो होना चाहते हो तो अपने आप को पेंट में फिर पुश करो, फिर पेंट में मूव हो जाओ, फिर पेंट में कुछ साल बिताओ, उसके बाद कॉम्प में जाओ. तो या दिस इज द बेसिकली, I mean, this is the growth graph basically from, I mean, what I think. Nice. One more question I want to ask is what a lot of time is when students say or industry people say roto is like a laborous work, and how true the statement is and what are your take on this statement? देखो, हर काम में मेहनत तो लगती है, ठीक है. If we say laborous, I would contradict that, because अगर आप पेंट में भी जाओगे तो भी आपको उतने ही एफर्ट्स मारने हैं, आप कॉम्प में भी जाओगे तो भी आपको उतने ही एफर्ट्स मारने हैं. एक रोटो आर्टिस्ट को ऑफिस में मतलब यस एक जगह पे बैठ के हमें बहुत सारा मतलब एक कैरेक्टर का रोटो मिलता है, हमें जगह पे बैठ के उसको कॉन्सेंट्रेट करने का. इसमें भी क्रिएटिविटी आती है राहुल. इसमें भी क्रिएटिविटी ऐसी है कि हमें एनालाइज करना पड़ता है कि हमें अगर एक 5 डेज का शॉट मिला है, हम इस 5 डेज के शॉट्स को 3 डेज में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, और वो इजीली. और अगर हम वैसा दिमाग और वैसा क्रिएटिविटी लगा रहे हैं एक शॉट करने में, तो हमें डेफिनेटली बहुत मजा आया. एंड आई एम टेलिंग, सो व्हेन आई वाज अ रोटो आर्टिस्ट, मैं देखता था कि मेरा काम जल्दी से जल्दी कैसा हो, तो मैं उसके लिए बहुत सारे ट्रैक्स निकालता था. बहुत सारे मतलब देखता था कि इजीएस्ट पार्ट कौन सा है, पहले वो देखता था. तो एंड व्हेनेवर आई यूज्ड टू टेक आउट अ ट्रैक ऑफ अ शॉट, और वो ट्रैक तो मैं अपने रोटो पे अप्लाई करता था, और वो मेरा रोटो उस ट्रैक के साथ बहुत अच्छे से जा रहा है. तो एक खुशी मिलती थी कि यस मेरा एफर्ट्स इसमें बच गया. सो एज अ रोटो आर्टिस्ट जो लेबरस जॉब हम बोल रहे हैं,
उस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको स्मार्टली कैसे जल्दी करें. So coming again to the comp part. Now once the roto is done, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ. When I was into compositing team, मुझे ऑफिस में सबसे लेट हम होते थे ऑफिस जाने के, बिकॉज एज अ कंपोजिटर वी हैड टू वेट टिल वी गेट रेंडर्स फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट्स. ओके, तो वहां पर भी पेशेंस आए. नाउ रोटो में हमें लेबरस इसलिए लगा क्योंकि हमें बैठ के काम करना पड़ा, वेरेज हमें कॉम्प में किसी और के लिए रुकना पड़ा. तो एनी दोनों जगह हमें स्ट्रेच करना पड़ा है, दोनों जगह हमें ऑफिस में रुकना ही पड़ा. सो फॉर मी बीइंग लेबरस इज continuously doing one single thing and not giving time to some other. कॉम्प में भी जब मैं गया तो मुझे हमेशा भी वही है, मैंने मेरा चीज करके रहा, बट आई हैड टू वेट टू गेट रेंडर्स फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड वेटिंग देयर एंड सिटिंग देयर. उसमें मुझे बहुत सारे पेशेंस लगे. सो सी सभी जगह पर मेहनत तो लगेगी, एंड इफ यू आर रेडी टू पुट इन एफर्ट्स तो यू डेफिनेटली ग्रो. बट अगर आप ये सोचोगे कि नहीं मैं इजी स्किल्स कैसे लाऊंगा, तो वो तो नहीं होगा. बस आपको हर जगह पे एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे, and you have to respect each and every effort which you are putting for your work, and that is again for you yourself only. आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए है, तो खुद के लिए मेहनत करने में बुराई क्या है. Last question from it would be कि what about showreels? What are your take if I want to become a roto artist? How my showreel should be, how long it should be, and what should it contain? Okay, so particularly talking about Indian studios और Indian studio industry ना, तो जब हम इंस्टीट्यूट से वगैरह निकलते हैं, हम कॉलेज से निकलते हैं, तो उस टाइम पे एज अ प्रोजेक्ट शोरील काफी इंपॉर्टेंट होती है. आप बनाओ एक शोरील, यू नो, बिकॉज दैट विल बी योर ओन प्रैक्टिस. आप दिखा सकते हो किसी स्टूडियो में. बट आजकल ऐसा होता है ना, बहुत सारे स्टूडियोज में आप जाओगे तो वहां पर टेक्निकल टेस्ट होता है आपका. मतलब इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ रोटो आर्टिस्ट, तो आपका एक रोटो का टेस्ट होता है व्हिच इज फॉर 6 आवर्स या 5 आवर्स. तो उस टेस्ट के बेसिस पे आपको जज किया जाता है. शोरील में कैसा होता है ना, बहुत सारे लोग अपने हिसाब से शॉट्स डालते हैं. तो हम क्या करते हैं, बहुत बार इजी शॉट्स डाल देते हैं और उसका रोटो हम वहां पे प्रेजेंट करते हैं. ठीक है, मैंने शोरील तो आपकी देखी, शोरील के बाद भी मैं आपको टेस्ट दूंगा. तो शोरील इज इम्पोर्टेंट है. शोरील मतलब अगर आप एक प्रोजेक्ट वाइज बोलोगे, आपको एक खुद का कुछ बनाना है, तो डेफिनेटली यू मेक अ शोरील. शोरील में आपके रोटो के शॉट्स होने चाहिए, एटलीस्ट 3 रोटो के शॉट्स होने चाहिए, इजी मीडियम एंड हार्ड. पेंट का शोरील बनाना है तो उसमें 3 शॉट्स होने चाहिए, इजी मीडियम एंड हार्ड. सो सेम कॉम्प का भी अगर आप बना रहे हो तो इजी मीडियम एंड हार्ड, ऐसे 3 कॉम्प्लेक्सिटी के शॉट्स होने ही चाहिए हर शोरील में. ड्यूरेशन की बात नहीं है, एज फार एज यू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग. आपका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्या बोलते हैं, काफी अच्छा है आपका बैकग्राउंड म्यूजिक एंड आपका आउटपुट, तो ड्यूरेशन कितना भी रख सकते हो. बट या लिमिटेड टिल 7 to 8 minutes. उससे ज्यादा 7 to 8 minutes भी बहुत ज्यादा. 5 minutes इज ओके फॉर अ शो. बट देन 5 minutes में आपको बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वाला. So we have a question from a student. He's asking, how can I switch paths, like starting as a roto artist to finally being a compositor, or is it good to start directly as a compositor? I guess you already answered that, but you can. No, I would love to answer that again. Yeah, starting as a roto artist, आप बहुत सारे स्टूडियोज में ऐसे होता है that you start as a roto artist. Suppose you have done roto for 2 years, and there's also some paint work in the studio. So what the studios do is like they conduct internal tests or something. They conduct IGPs or internal tests, which जो आप दे सकते हो. अगर आपको पेंट में भी इंटरेस्ट है, आप पेंट में भी आपका काफी अच्छा हाथ है, तो आप उसको टेस्ट वगैरह दे सकते हो, एंड यू कैन सर्व देयर एज अ रोटो पेंट आर्टिस्ट. फिर बहुत बार ऐसा हो जाएगा कि जब आपको पेंट के शॉट्स मिलेंगे, आपका लीड और सुपरवाइजर जब आपके शॉट्स चेक करेंगे, उनको लगा ऐसे कि जैसे आपका आउटपुट काफी अच्छा आ रहा है, इसमें से पेंट में से आउटपुट काफी अच्छा आ रहा है, तो आपको पेंट के शॉट्स ज्यादा मिलने लग जाएंगे. एंड वंस यू गो इनटू पेंट ना, आई वुड से पेंट एंड कॉम्प इज पर्टिकुलरली सेम, बट मैं तो बोलूंगा पेंट कॉम्प से ज्यादा टफ है, बिकॉज आपको बहुत सारी टेक्निकलिटीज लगती है पेंट. तो पेंट इज मच मोर टफर देन कॉम्प. और एक बार आपको पेंट पे अच्छा हाथ हो गया तो कॉम्प में आप कभी भी जा सकते हो. तो इवन इफ यू आर अ सीनियर पेंट आर्टिस्ट किसी स्टूडियो में, तो आप किसी दूसरी कंपनी में स्विच मारते हो एज अ कंपोजिटर, तो भी आप आराम से क्वालिफाई करते हो उस चीज के लिए.
And whereas jumping onto compositing directly, then I would again say that क्या आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड स्किप करोगे और डायरेक्टली सिक्स्थ में जाओगे? नहीं, वैसे नहीं होगा। आप एज अ फ्रेशर कहीं लगोगे तो आपको बहुत बहुत जरूरी है कि आप रोटो पेंट में से पास हो और फिर ही कॉम्प में जाए। और कोई स्टूडेंट आपको डायरेक्टली कॉम्प में लेगा भी नहीं अनटिल एंड अनलेस आपका काफी अच्छा रेफरेंस है, आपको स्टूडियो हेड वगैरह काफी जानते हैं। बट देन वैसा वैसा रेफरेंस लेके डायरेक्ट कॉम्प में जाना भी बहुत ही यूजलेस होगा, क्योंकि जब आप बैठोगे वहां पर आपके सराउंडिंग्स में लोग, क्योंकि एक कंपोजिटर को भी रोटो करना पड़ता ही है, अब वो मना नहीं कर सकता उस चीज को। एंड व्हेन यू हैव टू डू योर ओन रोटो इन योर कॉम्प शॉट एंड व्हेन यू विल से कि अरे मुझे रोटो आता ही नहीं, तो वहां पर थोड़ा सा एम्बैरेसिंग मोमेंट हो जाएगा। You have to go through these two departments. Okay. So we have one more question. How to get a freelance in VFX and 3D? Basically, do we get roto work as a freelance thing or something like that? Yes, we do. So, अभी there are multiple sites. I cannot mention the names, but there are multiple sites जहाँ पर आप आपके codes डाल सकते हो. You can quote yourself कि मैं I am a qualified person and I can do roto at such price. तो ऐसे links है कुछ, आप उन पे जाके आपके codes डाल सकते हो and you can ask for work. अगर आपका अवेलेबिलिटी है और काम भी आया है किसी के पास, तो एक हब है बेसिकली जहाँ पर आप आपके कोड डालते हो और अगला बंदा दूसरे के पास काम होता है तो वो आपको अप्रोच करते हैं कि आई हैव दिस अमाउंट ऑफ वर्क, कैन यू पिक इट अप, एंड मेरी ये डेडलाइन है। तो ऐसी बहुत सारी साइट्स है, लिंक्स है, आप सर्च करो गूगल पे, मिल जाएंगे आपको। ऑल्सो बहुत सारे इंडियन स्टूडियोज हैं जो मतलब क्रिएटिव स्टूडियो बोल सकता हूँ, सो दे आर स्मॉलर इन साइज, 10 आर्टिस्ट का स्टूडियो है या फिर 20 आर्टिस्ट का स्टूडियो है, एंड कभी कभी ऐसा होता है कि उनके पास बहुत सारा काम आ जाता है। सो इफ यू हैव गुड कॉन्टैक्ट्स विद द स्टूडियो पीपल, मतलब अगर किसी स्टूडियो के साथ आपका अच्छा कॉन्टैक्ट है तो वो आपको अप्रोच कर सकते हैं, या फिर आप उनको पूछ सकते हैं कि आपके पास कुछ फ्रीलांस काम है क्या, फ्रीलांस रोटो या फ्रीलांस थ्री का काम है क्या। दैट इज वन वे ऑफ गेटिंग फ्रीलांस। सो फॉर दैट अगेन यू नीड टू हैव कॉन्टैक्ट्स। अभी कॉन्टैक्ट्स बनाए कैसे? सो आई वुड से लिंक्डइन, लिंक्डइन सब लोगों ने सुना होगा, लिंक्डइन। लिंक्डइन एक ये जो सोशल प्लेटफॉर्म है, इट इज सो मच यूजफुल। आप आपका एक प्रोफाइल बनाओ, आपकी शोरील बनाओ, आप लिंक्डइन पे डालो, आप उस पर रिव्यू मांगो एक्सपर्ट्स के, और हैशटैग्स वगैरह तो आपको बताओगे, तो वो सारी चीजें यूज करो। आपको होंगे बहुत सारे लोग जो आपके शोरील्स पे वगैरह कमेंट करके जाएंगे, एंड जब आपको लाइक मिलेगा उस पर या कमेंट मिलेगा तो वो रीच उसका और बढ़ेगा। तो अपने आप को लिंक्डइन पे भी मार्केट करो, वहां से बहुत सारे लोग अप्रोच होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो आप में से किसी ने कोई लिंक डाली होगी या फिर कोई शोरील डाली होगी, सो सपोज इफ आई लाइक दैट, अगर मैंने उसको लाइक किया, फिर मेरे सर्कल में जो मेरे फ्रेंड्स होंगे या जो मेरे कलीग्स होंगे, वो लोग को भी दिखेगा वो। तो अगर उनके पास कुछ फ्रीलांस वर्क होगा तो दे कैन अप्रोच यू, ये बंदा है, ये जो फोटो करते हैं, 3D काम करते हैं, तो दे कैन अप्रोच यू बाय लिंक्डइन। सो लिंक्डइन इज आल्सो अ सोर्स जहाँ पे आपको फ्रीलांस काम मिल सकता है। So, sir, this would be our end of our session. So, I would really like to thank you for conducting a really wonderful, throwing a light on the topic. It was really interesting and knowledgeable. So, before we go, we'd like to present you with a certificate for conducting this workshop. So, this is the certificate. I'll share it with you. I'll mail you the certificate. So once again, sir, thank you so much. I would like to thank the students as well for joining. Just a second. I would also like to thank you guys, and thanks to the students who have attended. Thank you to you both for giving this opportunity. It was really lovely to share the experience, and it was really good. I liked it. Just a second, sir. Okay. So, sir, thank you so much once again. Thank you, students. And before we end, I would like to again thank the college for organizing these workshops. I'll see you, students, in our next workshop. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.